دوسرے غیر احمدیوں کے پاس جو احمدی نہیں ہے جائیں گی اور ان کی اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد کے لیے بہت بڑا ایک مشکل ہے کہ ہماری بچیوں کے اوپر غیر احمدی دباؤ ڈالیں گے، ہمارے بچے آگے سے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جماعت نے پھر یہ اپنا لایا عمل تیار کیا کہ ہماری جو احمدی بچیاں ہیں وہ جب تک کوئی آدمی اہل سنت والا احمدی نہیں ہوتا وہ بچیاں ہماری شادیاں نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی ہماری احمدی بچیوں کو۔ اس لیے جماعت نے بچیوں کو کہا، ان کے والدین کو کہا کہ آپ باہر شادیاں نہ کریں، اور یہ نظام کا جماعت کا ایک نظام بن گیا۔ اور اس نظام سے جو خاتون یا جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو جماعت نظام سے اخراج ہوتا ہے۔ ایز اے مسلمان وہ مسلمان رہتے ہیں، ایز اے احمدی وہ احمدی رہتے ہیں، وہ نظام جماعت سے اخراج ہے۔ ان سے صرف چندہ نہیں لیا جاتا، وہ جمعہ پڑھیں، وہ نماز پڑھیں، وہ ہر وقت مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ چندے کی سزا لگ گیا تنویر صاحب، چندے کی سزا لگ گیا۔ اچھا تنویر صاحب چھوٹا سا فیصلہ وہ لگ گیا، چندے کی سزا لگ گیا۔ اچھا میں نے آپ کو کلیئر ٹھیک ہو گیا تنویر بھائی۔ اب یہ اماں جی کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے مرکز سے، مرکز کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے حضور اس وقت سٹے کیا ہوا ہے، اس وقت ان کا سٹے ہے لنڈن میں، ٹھیک ہے۔ مرکز سے ان کا ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ ان کو احراج جماعت کا ہو گیا ان کا۔ کیا آپ کے حضور نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا ہے ان کے خلاف؟ مجھے اس بات کا ہرگز نہیں علم۔ میں کہہ رہا ہوں میں دہرا رہا ہوں، میں نے الفاظ دہرائے ہیں۔ اگر لگا لینا، اگر کیا تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں نا میرے بھائی۔ اچھا میری بات سنیں، اگر تو انہوں نے جو ہمارا جماعت احمدیہ کا نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کوئی اس کی خلاف ورزی کی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ خلاف ورزی کی بات نہیں سوری نہیں دے رہے، یہ پھر اپنے حضور کے فیصلے کے اوپر آپ پھر وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے کہا ہے کہ آپ کے حضور نے لیٹر کے اوپر سائن کر دیے ہیں کہ صفیہ میڈم جونسین کا احراج جماعت کیا جاتا ہے، اور آپ کے حضور کو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آپ کو کیسے فیصلہ ٹھیک ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے خود ان کا لیٹر، آگے بیان کریں۔ کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے ان کا جو لیٹر ہے جو احراج آیا لندن سے دیکھا ہوا میں نے۔ تو ان کے اوپر کیس کیا تھا؟ مطلب آپ یہ کہنے کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے حضور نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا؟ نہیں آپ اس کو دیکھو، کسی اور کی ایگزامپل لے لو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب حضور کے فیصلے کو تنویر صاحب اپنی نظر سے دیکھیں گے کہ کیا حضور نے وہ فیصلہ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آپ میری بات کسی اور طرف موڑ رہے ہیں۔ میں نے یہ جو کہا ہے جماعت کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اس میں یہ منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچی کسی غیر احمدی سے شادی کرتی ہے بھائی اسے چھوڑ دیں، اس کی طرف شادی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ سنیے گا جماعت سویڈن نے، سن لیں تنویر بھائی ایک سیکنڈ، میں آپ کو سارا سنیریو، سویڈن جماعت نے ان کے خلاف ایک رپورٹ جون سی ہے وہ لنڈن مرکز کو بھجوائی۔ آپ کے حضور کے سامنے سن لیں نا، پہلے سن لیں، آپ نہیں دیکھ سکتے وہ رپورٹ کون سی تھی، سن لیں تنویر صاحب، آپ کے خلیفہ وقت نے دیکھ لی نا، آپ کے خلیفہ وقت نے دیکھ لی رپورٹ والی، اب آپ خلیفہ وقت سے اوپر ہو گئے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے خلیفہ وقت سے پہلے وہ رپورٹ مجھے دکھائی پیارے بھائی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، اگر تو انہوں نے غیر جماعت سے شادی کی ہے تو پھر صحیح کی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہے، اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر اگر نکلنا ضروری ہے، اگر انہوں نے کوئی اور ایسا گناہ کیا ہے جو ایز اے مسلمان، ایز اے احمدی انہوں نے کوئی اس میں انکار کیا ہے اس بات کا کہ وہ اسلام کے رکن کے خلاف ہو، تو پھر بھی اخراج ضروری ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اگر انہوں نے کوئی ایسا کام، تنویر صاحب سن لینا، اب آپ نے بتا دیا نا، اگر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اگر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو شریعت نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی وجہ ہے، اگر پھر بھی حضور نے ان کا اخراج کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن نہیں ہے، مطلب جو آپ کے حضور فیصلہ کریں گے وہ بالکل 200% رائٹ فیصلہ کریں گے، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، ایسی بات ہے؟
अब यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपके ये हजूर नहीं कभी बता गलत रहे हो सकते हैं, कि- इतना बता दें, हाँ या ना? हाँ, अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है तो फिर हो सकती है। क्या गलत क्या हो सकता? मैंने कहा आपके हजूर कभी गलत हो सकते हैं। आपके मेरे अल्फाज को दोबारा सुने। आपके यार, जो वो हजूर हजूर हैं, के पास तो जो तब आपके जाओगे इस ना, वक्त पहले 5वें खलीफा हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इतनी सी बात है भाई, हाँ या ना का जवाब है। हमारी नहीं मैं गलत ये हो कह सकते। रहा हूं आपका जो कि- फैसला है बिल्कुल ठीक आया हुआ। अच्छा जी, यार शान भाई भाई, बात मैं- खत्म हो जाए मैं तो खुद- मैंने भी थोड़ी सी बात करनी। जी कर ले, जी, सब मैं मुफ्ती भाई कर सदर ले। जमात हूँ, मैं यहाँ का सदर जमात हूँ, जर्मनी जमात में एक इलाके का। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि वो इनके खिलाफ कोई केस, इन्होंने ना जुर्म किया हो, केस आगे चले जाए, मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल। या प्यारी बहन कोई गलत बयानी से बात कर रही हैं, या इनसे कोई कसूर हुआ है, ये मुझे पता नहीं। केस क्या है, केस तनवीर पता भाई, हो, तनवीर भाई, मैं आपको बताती हूँ। मैं भी इनकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मिर्जा साहब की टिकटॉक पर बैठकर किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, मैं क्या? टाइम लगाती हूँ थोड़ा ताकि सा सबको मौका। टाइम मिल जाए। इन्होंने मिर्जा साहब मुफ्ती की साहब आप किताबें बोलें। पढ़ी हैं। क्या मिर्जा साहब की किताबें पढ़ी? अच्छा, मैंने टाइम लगाया मुफ्ती साहब का, प्लीज अब सारे एक मिनट। ये तो आप बता रहे हो ना, वो बाजी बताएं तो फिर। जी तनवीर साहब, जरा थोड़ा सा हमें भी मौका दे दें। अच्छा, मैंने सिर्फ ये पूछना था, इखराज तो लगा दिया और आप कह रहे थे कि चंदा नहीं और लिया मुफ्ती जाता। मुबशर आ गया, और मुफ्ती मुबशर तेरे नाल ते मैं गल ही नहीं करनी। तू ते अच्छा, वो जो चंदा आप लोगों ने लिया होता है, उस चंदे का क्या बनता है? मैंने अच्छा। सिर्फ ये पूछना था, वो चंदा सफिया लिया जो बाजी, होता है। ये बंदा नहायत बदतमीज है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। तनवीर ओके। भाई, ये पहली दफा मेरी ब्रॉड पे आए हैं, आप इनसे ये बात ना आप करें। बात कीजिए, लेकिन मैं इनसे बहुत दफा अच्छा जी, बात कर चुका हूँ। मैं- ये मिर्जा साहब मैं कर मशवरे लेती देते हूँ। हैं, और साहब ने आपके साथ कोई बदतमीजी, कोई आपको गाली, बात तो सुन ले, बात तनवीर भाई बात तो सुन ले प्लीज। बात मैं बात कर लेती हूँ। कोई बदतमीजी आपके साथ मुझे गाली नहीं पहले देंगे। क्या कोई मुफ्ती साहब उसने मुझे आपको कहे बुरा कि भला मैं कहा? मिर्जा साहब को गाली नहीं दूंगा। नहीं देखिए तनवीर भाई, वो मेरे से बात कर लेते हैं ना, मुझे नहीं पता, आप लेकिन एक बाजी मुझे ये बताएं, इनको मुफ्ती मुबशर साहब को कहें कि ये मिर्जा साहब की जात के ऊपर गालियां नहीं देंगे। अच्छा बाजी, वो मैंने लिख के आप ही लगाया हुआ है, बताइएगा, किसी भी अकाबरीन को नहीं। बाजी चले आप ही बता दें कि वो जो चंदा इन लोगों ने आपसे लिया था साबका जिंदगी में, तो उन चंदों का फिर क्या बनता है? कोई वापस आपको वापस कर दिया जाएगा। मुफ्ती साहब, जो मुझे पता है ना कि अगर आपकी वो होती है, लेकिन उस सूरत में जब कोई जमात छोड़कर मुतालबा करे तो जो चंदा वसीयत होती है ना, वो वापस ले सकते हैं, लेकिन बाकी चंदा वापस नहीं ले सकते। लेकिन वो उस सूरत में जब कोई जमात खुद छोड़े, या मतलब वो कहे कि मुझे वापस चाहिए पैसे, तब। नहीं, वो तो एक चंदा ना, तो बकाया चंदे जो थे वो किसकी जेब में जाते हैं या क्या, उनका क्या बनता है? वो भी जहाँ लगने होते हैं ना, लाइक MTA के लिए और सबके लिए, वो वहीं पे लग चुके होते हैं, तो वो वापस नई गाड़ी लेने के लिए या बंगला लेने के लिए। अच्छा बाजी, आप चंदा वापस लेना चाहती हैं? नहीं। हाँ, तो जो मुबशर साहब आप चुप कर जाए, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। नहीं, मैंने तो सिर्फ एक मसला पूछा था कि नहीं, अहमदी मसला मैं अहमदी शरीयत का आप मसला अहमदी- पूछा था ये। आप जब अहमदी होएंगे और फिर छोड़ेंगे, आपको सारा चंदा मैं भाई दूंगा। मालूमात क्या, मालूमात लेना गुनाह है क्या? मुबशर मालूमात साहब, नहीं मैं तानू बड़ा डाटा तनवीर जान भाई, अभी तो वो अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हम किसी और ब्रॉड की मुबशर बात साहब, यहाँ पे तो नहीं मैं करते ना। पाकिस्तान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पाकिस्तान आके मिलना है और मैं ਤੁਹਾਡੀ दावत करनी है। जी चलो, वो तो अभी जो थे वो एक नासर साहब भी कह रहे थे दावत करनी है, तो वो पंजाबी च कहंदे ने ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। तो मैं क्या चलो आया देखते खड़ा, सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ठीक ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਚ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੰਦਾ ਜਰਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। तो नासर साहब ते कहंदे सन कि तेरी तलाशी लैके तेनू मैं अपने घर वड़न देंगा, जी अम्मा। ते तुसी भी तलाशी लैके वड़न दोगे?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਗਰ ਆਮ ਮੌਲਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਜ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਜਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦੇ ਸੋਪੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਜਨੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀ ਕਰੀ ਦੀਏ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਐਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਤੀਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਐਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ यहाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ मतलब गुफ्तगू ना हुई कई दफा हो चुकी है। तनवीर भाई कुछ माँ बहनों की भी इज्जत होती है, वो नहीं करेंगे यहाँ पे, मुझे पता है। आपको कुछ भी नहीं कहा प्यारी बहन, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अच्छा मेरी बहन, मेरा एक सवाल है, छोटा सा आपसे सवाल है, ये तो बाद में चलती रहेगी। अच्छा मेरा ना कुछ प्राइवेट में कांटेक्ट है एमडीओ से, या एमडी औरतें भी हैं, वो हमारी बहन है। उन्होंने यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि अभी इसके, क्योंकि जब इसने जो है ना डिवोर्स ली थी तो इसके बच्चे छोटे थे और इसको अलाउंस मिलता था, तो अभी इसके बच्चे अलाउंस जो हुकूमत की तरफ से मिलता है बच्चों के लिए। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बहन की मेरी बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों ने कहा है। अच्छा फिर ओके। और उनमें औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये औरत अभी ड्रामे कर रही है, इसको चाहिए बस इसको जो है ना रुपया या पैसा, तो ये इसको जो भी देगा, चाहे वो जमात अहमदी है या चाहे जो है ना मुसलमान, जहाँ भी ये जाएगी इसको पैसा मिलेगा, ये उनके साथ बोलेगी। तो इसके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आप इसकी थोड़ा सा इसकी वजह। अच्छा वो क्या कह रहे थे कि जब मेरे बच्चे छोटे थे। बाजी एक मिनट बाजी एक मिनट जी बाजी। अच्छा यार मलक इमरान ना भाई ना देखो यार एक मिनट गल ते करन दियो यार, की हो गया ये? मैं अपने बंदे नाल गल करना पिया, गल भी ते करन दियो यार। मलक साहब औरत भावें जिस, मेरा अपना एक वे जमीर और मेरा अपना एक वे हिसाब किताब के ना भाई, औरत का बहुत ही एहतराम, भावें कुछ भी है, वो बहुत ही एहतराम है ते इंज दे सवालात ना भाई ना बिल्कुल नहीं। मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ना भाई कोई भी नहीं भावें जिन्ने भी सवाल किया ना जी, नहीं जिन्ने भी किया ना जी, मेरी मां दी जगह ने मेरी जिन्ने भी किया ना जी, सानू ओदे नाल नहीं कोई लेना देना ते बाहर लै वे के इंज, बल्कि इंज दे सवालात करन वालेयां दा मुंह ठप करीदा हुंदा है, खुद करीदा। बिल्कुल बहुत सोहनी गल। नहीं मैं वो क्योंकि लोगों के दिलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋग एक गल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਲਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ मेरे के जस्ट सवाल सी। और इस ना यार ये भी बता देती हूँ कि अगर किसी को गलतफहमी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बच्चे नहीं, मेरे पास एक बच्चा है जो कि मेरा बेटा है, अल्लाह सलामत रखे उसको। और मैंने आज तक जमा से कभी कोई पैसे नहीं लिए। हाँ ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस औरत को पैसे चाहिए, तो वो पैसे दो ताकि मैं ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करके आऊँ और मज़े करके आऊँगी, ठीक है? तो वो फिर कोई मसला ही नहीं।
वो कोई मसला ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, तो बस्तफार है, मजाक भी टिकटॉक पे तो मजाक भी नहीं करना चाहिए। यही है ना, देखा मलक सुन लिया जे, मलक सुन लिया जे, हाँ मलक सुन लिया जे, मतलब ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੜ ਪਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सही है। मैं मुबशिर साहब की तायद कर रहा हूँ। अल्लाह जानता है कि मलेशिया हो गया, थाईलैंड, पाकिस्तान जो हमारे अहमदी मुश्किल में है, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने अपना 99% जेवर बेच कर उनकी हेल्प की है। मैंने जमात से आज तक कोई पैसा नहीं लिया। ये बात पहली दफ़ा मेरी ज़बान पे आ रही है। मेरे बेटे ने मुझे कभी मना नहीं किया। अब वो कहता है मामा आप, मैंने बचपन में आपको जिस तरह ब्रेसलेट पहने हुए देखा, कड़ा पहने हुए देखा, आप बस वो मुझे मेरे लिए सेव कर लीजिएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि वो माँ बाप देते हैं जहेज़ वगैरह ये वो, तो मैंने मुझे कभी भी मैंने इनसे कोई पैसा ना लिया है, ना लेना है, ना मुझे ज़रूरत है। ठीक है ना मुफ्ती साहब, जरा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? साहिब भाई कितने जालिम है ये लोग। नहीं बाजी एक मिनट रुकें, मुफ्ती साहब जरा थोड़ा सा इस बारे में फरमाएं। माशाल्लाह आपने बिल्कुल मना कर दिया है सवाल करने से, लेकिन जरा ये भी फरमाएं कि जो लोग जाके चहमगोइयाँ करते हैं जाके लोगों के पर्सनल में कि इसका खराज और उसका खराज, ये क्या वो क्या, ये चहमगोइयाँ करके आपस में बातें करके फिर सवालात ला के किसी से पूछना कि बाजी अब बताएं कि अब जो है मुझे ये सुनने को मिला, भाई आप जहाँ पे लोगों के साथ इस तरह की बातें करते क्यों हैं जाके? लोगों के बारे में फरमाएं यार। यही गल है ना, देखो चलो मेरे मजाज नूं या मैं मेरी ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ भी है। सवाल तो बात की बात है ना, सवाल बात की बात है। पहले ये बताया जाए कि लोगों के साथ जाके इंटरेक्शन करना और उनसे पूछना जाके कि फलां जो औरत जिसका खराज हुआ है या किसी बंदे का खराज हुआ है उसके बारे में जाके चहमगोइयाँ और बातें सुनना करना, ये क्यों है? नहीं सही नहीं है ना, नहीं गलत है, एक गलत है, गलती है, बिल्कुल गलत। और हमायत असी नहीं करांगे, बिल्कुल नहीं, कोई हमायत नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब एक और सवाल देखें कि उसकी वीडियो लगा के उसके फेस को बिगाड़ के उसको गालियाँ दी जा रही, अल्लाह माफ करे। देखो साडे मुसलमाना ने भी पिछले दिनों कोई इंज दियां हरकतां कीतियां ते असी उन्हां कोल जाना छड्ड दित्ता। अल्लाह दी कसम, मैं क्या कि ना बई ना किसे औरत है, वो साडी भैन दे दर्जे ते वे, साडी मां दे उम्र तो वड्डी जे ते मां दे दर्जे च, वो भावें किसे काफर दी औरत ही क्यों। बेशक मुफ्ती साहब वही बात है कि औरत दा अपना एक तकद्दुस है, ओनू कमाल ना कीता जाए। मुफ्ती साहब मैं इत्थे जर्मनी रहना और मैं एज ए सदर जमात भी रहा काफ़ी देर, और मेरे को एक अब मैं तुहानू अपने अहमदी का केस दसना, मैं दसना तो नहीं चाहिए मगर मैं दस देना कि इंसाफ की होंदा है। मेरे को एक केस आया कि मियाँ बीवी दे तल्लकात ठीक नहीं सन और लड़ाई होंदी रहिंदी सी। बीवी ने क्या बीवी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ नहीं सी चाहती, बहरहाल वो गल तलाक तक पहुँच गई। तलाक तक जिसले पहुँची तो वो लड़का कहता लड़के ने तलाक देती मगर हक महर जिहड़ा ना वो कह रहा सी मैं किस्तां च अदा करांगा। वो केस चला गया खलीफा वक्त कोल। खलीफा वक्त ने फौड उस वेले फैसला किया नगद पैसे अदा करे हक महर दे, अगर वो नहीं कर सकता तो जमात चो इखराज है। अच्छा उन्हें नहीं दिते, ओदा इखराज हो गया लड़के का। लड़के ने उन्होंने 6 महीने तक ना ਉਹਨੂੰ बड़ा अफसोस होया कि मेरा इखराज हो गया। उन्हें पैसे पूसे अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करके 10,000 यूरो उस बच्ची का हक महर अदा किया। हक महर अदा करने के बाद उन्हें दरखास्त लिखी कि हजूर मैं दरखास्त मतलब 10,000 अदा करते, रसीद नाल लाई। उन्होंने दोबारा उन्होंने जमात च दाखिल कर लिया, माफ़ कर दिता। तो मतलब हजूर तो इतों तक औरतों की करते हैं कि नहीं
ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ मुबशर साहब ऐसा ही फैसला किया कि नहीं ऐसा ही फैसला किया कि नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ भाई ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ मैंने जो आपको बात बताई है मैंने जो आपको बात बताई है ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ उसकी तायीद करते हैं आप जो मैंने बात बताई है ਕਿਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ ਵਾ यानी कि वो हक मैं नकद अदा किया नहीं वो हक मैं वो तो तुम कहानी सुनांदे हो ना पे मैं कहानी तो मैं खा रहा यार ओ भाई कहानी नु ते नहीं मेनू पता निदा नस्ल दी ते सी सुनी ही है ना निदा नहीं तू गल ए बाजी सफिया सामने बैठे ने इन्हां दी ते सुनी ही है ना असां ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਸ਼ਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ ਸਹੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने खलीफा बनाया है ते इंज हकूक ते ना पमाल करो चलो हजूर नू अल्लाह ने खलीफा ते बना दिता है लेकिन इस काम वास्ते बनाया कि भाई हकूक की पमाल करी जान ज्यादती उत्ते कम अज कम एक ज्यादती हो रही होवे कम अज कम कहो तो सही ना ज्यादती हो रही है यार कमाल हो गई है यार मजहब के इतबार नाल मेरी मुखालफ ने खातून लेकिन एक औरत जात दे होंदे नाते कम अज कम आवाज से उठाओ यार जी अस्सलाम वालेकुम कमाल हो गई है जी अस्सलाम वालेकुम तो बेहतरीन देखिए आपने इस चीज के ऊपर अपने मुसलमान भाई को भी रोक दिया भाई ना तेरा भी हक नहीं बनता यहाँ पे ये तो फिर लगभग ये राजपूत भाई हैं ये भी इशू है एक मिनट मेरी हाँ प्लीज अगर आप मेरे सबको सलाम और मैं भी अहमदी हूँ अभी तक मैं अहमदी हूँ मैं भी अपनी जमात के अहमदियों के साथ ये बातें करना चाहता हूँ कि जो हम अपने यहाँ मैंने पहले दूसरे ब्रॉडकास्ट पे ये मुबशर साहब को सुना इसके साथ एक वो बहस कर रहे थे बहुत ज्यादा मलक साहब कि हम अपने खलीफा या अपने नबी को सच्चा करने के लिए यहाँ दुनिया के साथ ऐसे 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 कर रहे हैं सीधा अपने खलीफा बकर पे आ जाए कि जो खलीफा बकर की ड्यूटी जो खलीफा बकर का काम होता है वो सही कर रहा है हम अहमदी मैं भी अहमदी हूँ चंदे भी देता हूँ मेरे पास चंदे की रसीदें भी हैं ठीक है मैं अपनी शॉर्ट थोड़ी सी कहानी बता के तो बाकी प्रूफ जो है ना वो मैं अपनी आईडी पे वहां लगा दूंगा मेरे पास 10-20 हज़ार पेज के ज्यादा मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ हजूर को खत लिखे हुए हैं कि मेरे साथ जो बेइंसाफी फ्रॉड मेरा घर उजाड़ा गया वो सब कुछ वो लिखे हैं और उसका इन्होंने फैसला क्या किया मेरी जमात ने मैं अहमदी जमात ने खलीफा वक्त ने और खलीफा ये जमात के जो दफ्तर हैं अमूर अमा कज़ा सब ठीक है उनका जो फैसला है जो जो मेरे साथ ये ज्यादती हुई है ना मैं सारा मैं इनके तरले मिन्नतें कोई मेरा ख्याल 14 साल से इनके कर रहा हूँ तो कोई इंसाफ नहीं मेरी बीवी के साथ मैं थोड़ी ना शॉर्ट आपको बता देता हूँ उसके बाद मेरी आईडी पे आपको सब प्रूफों के साथ मिल जाएगा जो जो मेरे साथ राजपूत भाई मुझे पता लग गया आपका जी आप वहां से ना क्या नाम है आमिर चुप रही जी राजपूत भाई करो जी मेरी बीवी ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ मेरे तो ज्यादा समझदार बैठे ने मैनू ये दसो कि केड़ा दुनिया च ऐसा मजहब है कि एक मियाँ बीवी के घर च हजारों लोगों के झगड़े होंगे ने मैं इत्थे तक सुनिया कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब भी अपनी वाइफ के नाल झगड़ा कर लेंदे हुंदे सी ठीक है पता नहीं मैं सही है राइट है गलत है आई डोंट नो
ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਸੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਦੀ ਅਸੀਂ 4 ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸੱਚੇ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਥਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 4 ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁੱਠੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ, ਪੇਪਰ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਖੁਦਾ? ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ बीवी ਨਾਲ इस तरह झगड़ा हो गया तो मेरे पुलिस ने फड़ लिया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ जी आपकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। मैं क्या कोई क्या हुआ है? कहते जी आपको खलीफा वक्त ने जमात से निकाल दिया। 2 घंटे नहीं हुए मैनू पुलिस ने पकड़ के थाने लैके गए। ठीक है, 2 घंटे च केड़ा मजहब आ कि केड़ा मैं क्राइम करता सी, कोई मैं डाका मारता है, कोई रेप करता है, कोई ड्रग डीलिंग कर देती थी, केड़ा जुर्म किया कि मैनू मेरी जमात ने उस वक्त जमातों कढ़ता कि तू साडा बंदा नहीं। अच्छा, ये सब टोपी ड्रामा मैंने समझ आया कि असी जेडे अहम दी बाकी है ना, वो कहेंगे नहीं खलीफा वक्त उसकी क्या हेल्प करते, वो तो मुरताद हो गया हुआ था। मैं तो नहीं मुरताद होया, मैं तो अपनी बीवी ने झगड़ा किया, फिर पुलिस ने फड़िया, मेरा ए केस है, मेरा कोई और केस नहीं। ठीक है, मैनू जमात जी जी मैं आपसे इसके बाद बात करूंगी, आप बात करें, लेकिन ये जो है ना सख्त लफ्ज बिल्कुल ना यूज करें जी। क्योंकि ठीक फिर है, वो आपकी बात कोई मतलब आपके नहीं मुखातिब मैं हम है ना। सख्त नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जो खलीफा वक्त को उसकी ड्यूटी होनी चाहिए थी ना कि किसी का, अल्लाह ताला को क्या चीज पसंद है कि किसी का घर उजड़ रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, तो आपका वहां रोल क्या होना चाहिए कि उनकी सुलह, उनका घर आबाद करने की कोशिश करो कि या खलीफा इस्लाम हो, अल्लाह का सच्चा खलीफा हो, तो वो मुझे 2 घंटे में जमात से खारिज कर दे, उसके बाद कोई हेल्प नहीं। मैं जेल में गया, सिखों के जो होते हैं, जो भी होते हैं सिखों के, वो 1 हफ्ते में आते थे, जेल के कमरे में बंद रखते हैं, बंदा तंग आ जाता है। मैं सिखों के साथ उसके पादरी को कहना कि तुम जब आओ मैं सिखों की बात भी सुनूंगा, तुम्हारी मस्जिद में जाके मुझे ले जाया करो, कमरे से निकाल के वो ले जाते थे। उसके बाद सुन्नियों का मौलवी आता था, उसको मैंने कहा कि यार मैं अहमदी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 1 घंटा मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया करोगे, जुम्मे वाले दिन तुम आते हो। संडे वाले दिन ईसाइयों का आता था पादरी, उसको मैं कहता था कि मुझे संडे वाले दिन भी 1 घंटा कमरे से बाहर निकाल दो, मैं आप लोग के साथ जाके बैठना चाहता हूँ। हम अल्लाह की सच्ची जमात है, अहमदिया। ठीक है, हम अल्लाह फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सबके लिए करते हैं, नफरत किसी से नहीं करते। मैं अहमदियों को बता रहा हूँ, मैं भी अहमदी हूँ, और मेरे साथ जो नाइंसाफियां जुल्म हुआ है, तो क्या इसके बाद भी हम कहेंगे कि जी अल्लाह का सच्चा खलीफा या अल्लाह की सच्ची जमात है? जितना जुल्म ये करते हैं, अहमदियों को मैं समझा रहा हूँ कि खुदा के लिए अपना दिमाग खोलें, अल्लाह से सिर्फ डरें, अल्लाह को माने, अल्लाह के रसूल को माने, ना कि ये मिर्जा को, अगर मिर्जा में सच्ची बातें होती है ना कि नबियों खलीफा वाली, तो हमें बता के ये जो चमचे बैठाए हुए हैं उनको तनख्वाहें देते हैं, वो वेले हैं, वो सारा दिन हमारे साथ बहस कर सकते हैं, कुरान को इधर उधर से तोड़ मोड़ के मिर्जा को सच्चा नबी साबित करवा देते हैं, मान जाते हैं कि चलो सच्चा है। तो उसका इंसाफ भी तो देखे ना। मुझे जमात से निकालने की बजाय मेरी बीवी के पास भाग के जाता, या यहाँ इस मुल्क में कौन सा डर है? लंदन में मैं 1-1.5 किलोमीटर इनसे दूर रहता था, मुझे आराम से घर में बैठ के जमात से अखराज कर दिया, और बाकी अहमदी इस तरह मेरे से हो गए कि जैसे मैं कोई दहशत गर्द नहीं, आपको जमात से निकाल दिया, हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते। ये हम अहमदियों का एक कानून तरीका है।
ठीक है। वैसे हम कहते हैं कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। तो मैं जमात को क्या बुरा कह दिया या जमात का क्या बिगाड़ दिया था कि मुझे मेरी हेल्प, जिस वक्त मेरी मदद करनी थी उस वक्त मुझे जमात से निकाल दिया। मैं थोड़ी शॉर्ट कहानी सुनाता हूँ, बाकी मैं अपने टिकटॉक पे आपने जितना सुनाया है मैं उसमें सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ जी कर। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं राजपूत भाई। मैं थोड़ा सा, मैं बाजी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, फिर आप कर लीजिएगा। ये राजपूत साहब को मैं बहुत अच्छे तरीके से बड़ा पुराना जानता हूँ। राजपूत साहब आप बताइएगा, कम से कम भी कोई 10 साल से मैं आपको जानता हूँ, ऐसे 12-13 साल तक। जी जी। अच्छा एक मिनट राजपूत भाई, एक मिनट जरा। अच्छा राजपूत भाई, जेल जाने से पहले बिल्कुल बंदा ठीक था, यकीन मानिए, और बड़ी डिबेट्स हुई हैं, बड़े मामला तो हुए हैं, अच्छा भला था ये बंदा, यकीन मानिए। बंदे को जेल में इतना मतलब ज़हनी टार्चर, जिस्मानी टार्चर नहीं, जिस्मानी नहीं, यहाँ लंदन में जिस्मानी नहीं करते, ज़हनी टार्चर करते हैं। ज़हनी टार्चर के बच्चे दूर कर दिए गए। और ये अब अच्छा, तो अभी एक मैं थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा था। इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदे के साथ क्या बीती होगी। अब बस यही मैंने बात करनी थी। जी बाजी सफिया जी। राजपूत भाई, मैं आप पे बिल्कुल कोई शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया किसी के दिमाग में कोई आ सकता है, आप पैदाइशी अहमदी थे? जी, मेरे वालिद साहब भी पैदाइशी अहमदी थी। मेरे दादा ने कादियान में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो दूसरे खलीफा थे उसके हाथ पे बैत की थी कि हम अहमदी हैं, कादियानी हैं। तो फिर मैं तो पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब भी अहमदी पैदा हुए, हम तो इसी जमात में हैं। मैं आज नहीं अहमदी हुआ, मैं बचपन पैदा हुआ हूँ, मेरे वालिद साहब भी पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आपकी बेगम से लड़ाई हुई थी, वो कोई जमाती रीजन नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं, मैं नॉर्मल, वो मेरे बहन भाइयों को बुलाओ, पैसा दो, काम छोड़ दो, बेनिफिट ले लो, कोई इस तरह वो पर्सनल बात है, उसको छोड़ो। बस मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, उसने मुझे कुछ गाली वाली दी, मैंने गलती में उसको थप्पड़ मार दिए। ठीक है, तो वो आपकी बेगम ने पुलिस को कॉल की होगी, पुलिस आपको ले गई, जिससे यहाँ का लॉ कहता है। हाँ, नहीं, मेरी बीवी ये सारा ड्रामा खेला गया मेरे साथ। ये अहमदी औरतों ने उसको समझाया कि पैसे भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, बेनिफिट भी मिल जाएगा, घर भी आपको किराए पे मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, बंदे की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई एहसान ना मार। पाकिस्तान से मैं लेके आया उसको स्पॉन्सर करके, यहाँ आके उसको पासपोर्ट मैंने दिलवाया। वो 8 जमातें पढ़ी हुई, मैंने 13वीं से छोड़ा हुआ। मैं 2 दफा फेल हो गया, उसको 1 दफा में पास करवाए थे ट्राई करके। ये नमक हरामी और ये सहेलियां थी कोई? हाँ, वो भी उनके पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। उन्होंने भी एलिगेशन मेरे पे लगाए कि इसको रोज मारता था, जख्मों के निशान होते थे। मैंने कहा आज मारा, आज नहीं जख्मों के निशान, आज तो वही है जो थप्पड़ मारे हैं वो निशान हो गए। तो बाकी जो रोज मारता था, कल के निशान किधर है, आज के किधर है, परसों के किधर है, झूठ बोला है। और मिर्जा साहब को मैंने जाके बताया कि ये झूठ बोला है, इनका कुरान पे हाथ रखो। कहते नहीं, ये पुलिस केस है। अल्लाह का खलीफा हो, मैं देखो मैं अहमदी हूँ, उसको अल्लाह का खलीफा मानता हूँ। अब या इंग्लैंड की पुलिस ताकतवर है या अल्लाह ताकतवर है? किसका हुक्म आपको मानना चाहिए? अल्लाह का हक सच की बात करनी चाहिए, ये हक सच की बात जानते हुए। डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर जमात तो इंटरफेयर नहीं करती। मेरी बहन, मैंने कब कहा कि वो जमात आके मुझे जेल से निकाल देती? मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा उन्होंने मुझे पकड़ा, काफरों ने मुझे पकड़ा, काफरों ने दोनों तरफ बात सुनी, जिनको हम काफर कहते हैं उनका कानून मुझे इंसाफ दिया। जितना मैंने जुर्म किया उतनी मुझे सजा हो गई, बात खत्म हो गई। अब सवाल है कि मुझे जमात से क्यों निकाला गया उस वक्त? मैं क्योंकि इसकी मदद ना करनी। क्या 2 घंटे के अंदर अंदर आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ मेरा घर जो इंग्लैंड में आप भी है तो जानती होगी, बैटर्सी और रोहैम्पटन में कितना फर्क है। गाड़ी में जब 10 मिनट 15 मिनट लगते, पुलिस ने पकड़ा, वहां ले गए। और मुझे वहां जाके घंटे के बाद मैंने उनसे पुलिस वालों को कहा कि मैं किसी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं पकड़ा गया हूँ, कोई मेरी मदद करे। मैं डर गया, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा ये है, मेरा घर बर्बाद हो गया। जमात, अल्लाह की जमात को चाहिए था कि मेरी हेल्प करते, या मुझे जमात से निकाल दी कि ये मुसलमान। अगर किसी के साथ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो तो जमात हेल्प नहीं करती, क्योंकि बीच में नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ कि जमात से मुझे हेल्प नहीं चाहिए थी। जमात कम से कम मेरी बीवी को जाके आपको कोई रीजन दिया कि उन्होंने क्यों निकाला?
नहीं कि आपने अपनी बीवी को मारा, कि हम इतने अच्छे लोग हैं यहाँ इंग्लैंड में, हमारा क्या तो असर जाएगा कि इस जमात के बंदे अपनी बीवियों को मारते, इसको निकाल दो, जना कर लो, वो ये हमारी जमात को बुरा। बात सुने ना, बात करने दे मुझे, मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों ना बोलूं भाईजान, क्यों ना बोलूं, क्या पाबंदी है क्या? नहीं, तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि इस जमात में हर बुराई होती है, सारे अहमदियों को पता है, मुझे पता है, जमात को पता है, रवा में बुराई होती है, क्वार्टरों में जो बुराई होती है, सब कुछ मुझे पता है। मैं भाईजान मेरी बात सुने, साथी तौर पे भी जानता हूँ। बात सुने मेरी, बात सुने, छोड़ दो बात, आप ही करो बात, मेरे पास जो मैं कह रहा हूँ ना बात वो सुने जी। बात आपको एक मिनट से, अब आजिए भाई, बात हो रही है आपके केस की, बाकी कहाँ पे क्या होता है वो अभी टॉपिक नहीं है, आप अपने टॉपिक के हवाले से बात कर सकते हैं, इसी मौजू पे रहें। बाकी कहाँ पे क्या होता है वो अभी डिस्कशन का ऐसा नहीं हो, फिर बात फैल जाए। दूसरी बात ये मैं सिर्फ ये जानना चाह रही बैठे हैं, अगर किसी ने इस बात का डिफेंड करना है, दिफा करना है, या उन्हें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, या उन्हें किसी किस्म का कोई सवाल है, वो ऊपर आके बात कर सकता है। मेरा सवाल है बिलाल भाई, मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि अब जब पता चल गया कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जमात जो है इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है, वहाँ के कानून के मुताबिक इन्होंने वहाँ पे वायलेंस किया, इनको सज़ा मिल गई, ओके, अगर जमात डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इंटरफेयर नहीं करती तो इनका जमात से खराज होना इस बात के ऊपर कि चूंकि आप यहाँ पे हमारी जमात का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्या ये बात ठीक है कि जमात इस बात के ऊपर लोगों को जमात से खारिज कर सकती है कि वो जमात का नाम बदनाम कर रहे हैं? यही मेरा पॉइंट था, यही मैं जानना चाह रही हूँ, इसलिए कि 2 घंटे के अंदर कहाँ मौका मिला होगा कि राजपूत भाई से पूछा जाए आपकी स्टोरी, अगर जमात ने इस वजह से और बाद में अगर उनको सुना गया है, ये तो वही बता सकते हैं ना। नहीं सुना गया, यही तो मैं पेट रहा हूँ कि खलीफा वक्त अल्लाह का सच्चा खलीफा है हमारे ऊपर। अच्छा राजपूत, आप दरमियान में आवाज कट गई थी, आप ये कहना चाह रहे थे, आपने कहा कि 1 घंटे के बाद मैंने कहा मैं किसी को फोन करना चाहता हूँ, तो आपने पुलिस स्टेशन मैंने किया, एक मुरब्बी है इनका, वो जमात के बड़े प्रोग्राम करता है दूसरे जो नॉन अहमदी हैं उनके साथ, के हमारे खलीफा सच्चे हैं, हमारी जमात सच्ची है, उसका भाई था आसन, उसका नाम जो मुरब्बी है असफद मनीब यार है, इस तरह का नाम है, वो बहुत मशहूर है जमात में, सारे अहमदी जानते हैं। आपको जवाब दिया जब आपने फोन किया? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि यार वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ काम टैक्सी करता था, हम इकट्ठे टैक्सी एक जगह पे करते थे, मैं वही मेरा ज्यादा करीब दोस्त था, वो जमात में भी बहुत, उसको वो जमात का पक्का बंदा है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, मैं यहाँ जेल में इस तरह हो गया। वो कहता है कि अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपको खलीफा वक्त ने जमात से निकाल दिया। मैं हैरान हो गया यार, मैं पहली कॉल के ऊपर उसने आपको ये जवाब दिया? 2 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे मैं रफली बता रहा हूँ कि यहाँ से 15 मिनट वहां ला गए, वहां जाके मेरा इंटरव्यू हुआ पुलिस में कि तुमने क्या किया, ये किया वो किया, उसके बाद मुझे अच्छा राजपूत भाई एक छोटी सी बात मुझे बताएंगे, क्या आपकी जो जब आपके साथ ही पुलिस केस हुआ है, क्या इस पुलिस केस से पहले जमात के पास आपकी कुछ शिकायतें मौजूद? नहीं यार, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जमात का क्या बिगाड़ा था, खुदा की कसम मेरा कोई नहीं, मैं तो जमात के नाम पे मैं लोगों के साथ लड़ पड़ता था, ये आसन जानता है कि मैंने एक के साथ उसने गुम्मन भाई जरा मौका दें मेहरबानी। सॉरी गुम्मन मुस्ताफी साहब मौजूद हैं जी? अस्सलाम वालेकुम भाई, माइक लगाएं, बिलाल भाई माइक लगाएं या फोन कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं मेरी आवाज के साथ बात कर रहे हैं, मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ शायद इसलिए, या क्या मामला है? राजपूत साहब, आप के नंबर के आखिर में 89 आता है? जी बस नंबर है आपके पास, मैंने काट दिया। बस ठीक है। अच्छा राशिद गुम्मन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी आ रही है जी। आप चूँकि बात यह है कि ये हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं, हम ज़्यादातर है गैर अहमदी, ठीक है, हम कोई बात करेंगे या कोई बात पूछेंगे, वो जितनी भी अच्छी बात होगी, लोग ये समझेंगे कि शायद ये तासुब पसंदी या तो मैं चाहता हूँ कि जो अहमदी हजरात हैं वो ऊपर आए और वो इन भाई से बात करें, लेकिन एक इज्जत और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए। आपने कोई भी बात करनी है, कोई भी चीज़ पूछनी है, आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपको किसी किस्म का हो तो ये भाई से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात यह है कि मैं
मतलब कोई लंबी चौड़ी ना बात करना चाहता हूँ, ना मैं इस कोरम में ऐसी बात करूँगा। बात यह है कि जो कहानी असल होती है उसको बयान नहीं किया जाता, जो सिनेरियो सामने सामने होता है वो बयान कर दिया जाता है। मैं मान ही नहीं सकता 2 घंटे में ना तो कहीं कोई इतला पहुँचती है, ना अखराज होता है, ना हमारे जमात में ऐसा होता है। पूरी कार्रवाई की जाती है, उसको बाकायदा कदा बनाया हुआ है, बाकायदा उसके अदारे बने हैं, उन पे दिया जाता है, उसकी सारी जान पहचान करके फिर जाके फैसला होता है। कोई कह दे कि मुझे 2 घंटे से अंदर अंदर निकाल दिया, ये कह दिया, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं को आज से थोड़ा एक केस थोड़ा होता है, हज़ारों केस होते हैं, वो होते रहते हैं। मामला जब पुलिस पे चला जाता है तो वो पुलिस का मामला है, उस पे ये कहना कि मुझे हेल्प नहीं हुई, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे निकाल दिया। बात यह है कि जब भी आजकल कुछ थोड़ा कम निकालते हैं, लेकिन पहले तजावत किया तो तुम्हें अहमदियत में आने के लिए दरखास्त दे और उसका पूरी कार्रवाई जो होती है वो करे, तो इनको दोबारा ले लिया जाएगा। बात यह है कि ये असल में मामला कुछ और होता है, उसको बयान करने में गैरों के सामने ऐसा बयान किया जाता है कि ये मेरी बात सुनो, मेरे पास प्रूफ है। मैं खत्म कर देता हूँ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बात भी करना, मैं नहीं, मेरे पास मेरी बात सुन के जाना, मेरी बात सुन के जाना, ये बयान बात नहीं खत्म होने वाली है ना, बात खत्म होने दे, दोनों के भाई बात खत्म होने दे। बात ये होती है कि दूसरों के सामने ऐसा बयान किया जाता है कि जमात अहमदिया कोई दजाल है, कोई जो हो रहा ना, अब मैं इनको नहीं कह रहा, जमात अहमदिया बहुत ही मोहब्बत वाली जमात है। ठीक है, लव फॉर ऑल, हेड फॉर नॉन। मैं मुझे तो 9-10 साल हो गए हैं, 20-30 ईदें आई हैं, सारे अहमदी मेरे घर के आसपास रहते हैं, तो इनको कभी ये नहीं आया कि यार ये अकेला आदमी रहता है, ये मुबशर साहब को लेना कहा। मैं मॉडरेटर नहीं हूँ साहिल भाई, मुझे सॉरी, बिलाल मॉडरेट कर रहा है बात करने के लिए, लेकिन मुझे उसको हटाना पड़ा मॉडरेटर से, क्योंकि वो थोड़ा शिकवा शुरू हो गया था कि अहमदी ब्रॉड पे ये सब हो रहा है, तो बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसा करें, हमसे मुफ्ती मुबशर साहब को लीजिए। जी मैं वैसे भी बिजी हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आप सुनने को मसा बात थोड़ी सी सुन के जाए, जो आपने कहा ना कि आपको माफी मांगनी चाहिए थी, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जेल से निकला, मेरा गुनाह भी कोई नहीं, और खलीफा वक्त से मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हजरत मसीह मौला साहब के सदके में माफी मांगता था कि मुझे जमात में दाखिल कर लो। अच्छा, जमात के माफी मांगने का इतना सदके देने के क्या चलो, उसका फर्ज था, जो खलीफा वक्त होता है उसका फर्ज होता है कि सुलह करवाए, अपने एजेंट भेजता, अपने बंदे भेजता, मौलवी भेजा, यहाँ बैठ के हम मिर्जा साहब को सच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम किसका घर पर बात हो रहा है, वहां मिर्जा साहब ने कोई किरदार अदा नहीं किया। और शेख तारक मेरे मोहल्ले का सदर था, इसने 1 मिनट में कॉल की, इन्होंने खुद निकाला। मिर्जा साहब को तो पता ही नहीं कि इसको निकाला, कि मुझे कोई बात बताना चाहे, मैं तो फ्रंट पे आकर मुझे जो मर्जी हो वो देखा जाएगा, क्योंकि मैंने अपना अरेंजमेंट कर लिया हुआ, जो भी होगा देखा जाएगा। जो दिल के साथ सेकंड में अदालत में आप 2 फरीक जाते हैं, तो दोनों अपने अपने गवाह वगैरह लेके जाते हैं। जब एक ये गवाह तगड़े हों, एक ये गवाह तगड़े हों, पता चल जाता है कि हम झूठ बोल के मिर्जा साहब को सच्चा कहते हैं। यहाँ मिर्जा साहब का चक्कर चक्कर आपकी अपनी फैमिली का मसला था, आपने अपनी बीवी को मारना शुरू किया। ये कहाँ का कानून है कि बीवी को मारो भाई? बीवी बच्चों को मार के तो बैठ में बड़ा बनना कि मैं दूसरे जालिम है, मैं बड़ा ठीक हूँ। उसकी मुझे सजा मिल गई ना, कानून ने सजा दे दी, यहाँ चोरी करो, ड्रग डीलिंग करो, कोई रेप करो, उसकी सजा मिल जाती है ना।
तो मजहब कौन सा मजहब है अल्लाह का जो उसको अपने मजहब से खराज कर देता है? ये बताओ। बस मुझे इतना पता है कि जमात जालिम नहीं है, जालिम आप खुद मानते हैं। इस तरह आप अपने ऊपर एक सेकंड भी इल्जाम नहीं लेना चाहते, अगले पे मेरे साथ झोंक रहे हो, मेरे बच्चे अगले के ऊपर इल्जाम झोंक रहे हो। दूर आपका अपना है, आपने बीवी को मारा, बच्चों को मारा, तो आपको पता चल गया है कि असल मुकदमा क्या है। मुकदमा खुद इंसान अपने अपना मुकदमा खुद कर सकता है। जमात जालिम है, हाँ जी, जमात बड़ी जालिम है, जमात पर बाहर निकाल देती है। भाई आप अहमदी हैं तो अहमदी हैं, कौन निकाल सकता है अहमदियत से? आपको निजाम से निकाला है, निजाम के मुताबिक चलेंगे, निजाम के साथ रहेंगे, निजाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, निजाम बाहर फेंक देगा। बिल्कुल, ये दुनिया का कानून है, हर किस्म का कानून इसमें लागू होता है। किसी को मॉडरेटर बना दें, अगर आपसे मॉडरेटिंग नहीं हो रही मैं मॉडरेटर नहीं हूँ, आप किसी अहमदी को मॉडरेटर बना दें जो इंसाफ से बात करवा सकता है या खुद मैनेज करें, क्योंकि इस तरह तो ये दलिया और खिचड़ी बन रही है, कोई किसी को दलिया। आप लोग मुझे गाइड करो, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो हमने गाइड नहीं करना, आपने खुद देखना है। हाँ, मैंने तो लिख के भी लगाए हुए हैं। तो प्लीज फजल भाई और लुबना मॉडरेटर हैं, दोनों एमडी हैं। मुझे पता है आप लोगों को एतराज़ नहीं होगा इसके ऊपर। म्यूट करने के लिए अब मैंने बाकी सब हटा दी। हाँ, अब ओपन आइज म्यूट कर सकते हैं अगर वो कौन है हमारी मॉडरेटर के नाम बताइए। एक बंदा मॉडरेटर में से ऊपर ले लें जो बैठ के इनको बता सके कि भाईजान अब आपका टाइम है, अब आपने बोलना है, अब आपने बोलना है। इस तरह का जो है ना मैं टाइम लगाती हूँ। पहले राजपूत भाई का टाइम लगा रही हूँ। राजपूत भाई आपने आराम से अपनी बात रखनी है, फिर उसके बाद घुमन रशीद भाई। अच्छा बाकी मैं दूर से बताना था कि मैं दूसरी आईडी से आने लगा हूँ, तो मुझे उससे मेरे मोबाइल की बैटरी लो। जी अभी ये गुमान साहब कह रहे कि अब खलीफा बकर के पास जो पुलिस केस है वो तो हो गया, वो सलाह मिल गई। अब खलीफा बकर जो अल्लाह का खलीफा है उसके पास केस गया, तो उसने मुझे पहले जमात से निकाला, फिर अल्लाह के वास्ते जमात के अंदर गया, जमात के अंदर गया साथ कि हम पैसे उसको पे कर रहे हैं, चंदे के सुर में हजारों चंदे हैं, किसी मतलब में इतने चंदे इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।